And Lord has his own ways to bring it to happen. और फिर COVID-19 आया. Our churches that were our kingdoms closed now. क्योंकि इससे पहले भी huge church buildings were such like a museum, and hardly people were going there. The spirit of evangelism in most of the churches was dead, and that's why the church is dead. If the church is dead, then there is no evangelism. और evangelism इस बात का साइन है कि ये कलीसिया alive है. और फिर क्या होता है? During this time period of COVID-19, we are trying to use all type of media facilities. I never used Zoom such like that. Even the honesty is this, that I came to aware about Zoom in this year early, since the COVID-19 entered into this world. I didn't know about that. मैं Facebook use करता था. I was using Skype, I was using YouTube, I was using my website and different television programs, but not Zoom. लेकिन अब Zoom के जरिया से, televisions के जरिया से, radios के जरिया से, और YouTube के जरिया से, websites के जरिया से, the gospel is reaching even the bedrooms of non-Christian people. God has his own ways to do so. There are a lot of testimonies I wish to share with you, but I can't because the time is limited. कि किस तरह जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं, they went on Facebook and on YouTube, they visited there, और उन्होंने वहां अपनी रूह की प्यास और भूख को मिटाने के लिए, according to their own desire, they have found material, and praise the Lord, now they are following the Master, the King of the Kings and the Lord of the Lords. And I try to encourage my beloved brothers and sisters, those who were not of this band, now they are in, and I'm trying to encourage them, to teach them and to pray them that how you can be the better witness for those who are around you. तो खुदावन यीशु मसीह आ रहे हैं, वो उनको ले जाएंगे, those who are born again believers. Means those who confess the Lord, I am sinner, and there is no way for me to come in your presence. I will go to hell. But Father, I repent from my sins. I turn from my old ways like prodigal son. I come into your presence and thank you, God, for sending Jesus Christ, who has paid the penalty of my sins on the cross of Calvary, died according to the scripture and rose again. He became my ransom and substitute. और फिर ये कहना
खुदावन, I'm opening the door of my heart. And I ask you to come in by the power of the Holy Spirit. Live inside of me. Take hold and control of my life. I'm giving the remote control of my life into your hands. Change the channels according to your own divine will. और जब हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर सरेंडर कर देते हैं, remember my dear brothers and sisters, it is not a denominational teaching. It is the teaching of the Word of God. So we have to receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior. And those of you who are on Facebook, and if you are not born again Christian, if you have not received Jesus Christ, I pray for you to have a long life, but who knows what will happen tomorrow. This is the day that the Lord has made. Receive him right now. Jesus can set you free, not the denominations. And I'm not against denominations as well, but I'm saying Jesus only can set you free. Receive him right now. Maybe there is not any second chance in our lives. अब जब खुदावन यीशु मसीह आएंगे, तो वो जो मसीह में होंगे, वो तो बादलों पर उठाए जाएंगे. और उसके बाद क्या होगा? मुकाशफा पहले 4 अबवाब में आपको कलीसिया का लफ्ज मिलेगा. और फिर चैप्टर 4 से लेकर किताब के एंड तक आपको लफ्ज कलीसिया नहीं नजर आएगा. Why? Because when Jesus comes, he will take his own along with him in eternal home, in heavenly places. और फिर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो लोग बाकी इस जमीन पर रह जाएंगे, they are those who have not received Jesus Christ. It is about 7 years time period, and this time period is called tribulation period of time. मुसीबत का जमाना. और इस मुसीबत के जमाने के 2 हाफ हैं, 3.5 साल के. इस पहले हाफ में बहुत कुछ होगा, लेकिन सेकंड हाफ में एंटी क्राइस्ट विल राइज अप, और फिर वो इजराइल के साथ एक कवनेंट, एक अहद बांधेगा. कहा जाता है कि वो प्रेजेंट जगह जहां पर हैकल थी, उसके शिमाल में उनको एक हैकल बनाकर देगा, ताकि मुसलमानों और यहूदियों के बीच में यह तनाजा खत्म हो जाए. And later on, this Antichrist will break the covenant that he will made with Israel. और वो अपना बुत उस 2 नंबर हैकल में नस्ब करेगा. सुअर की कुर्बानियां वहां पर गुजरानी जाएंगी, क्योंकि मती में लिखा हुआ है, जब वो उजाड़ने वाली मकरू चीज पढ़ने वाला समझ ले, ये उन कुर्बानियों की तरफ इशारा है. और फिर उस मुसीबत के जमाने में 1,44,000 बनी इसराइल में से 12 कबाइल हैं और 12,000 एक कबीले में से. यूं 1,44,000 बनी इसराइल वो लोग हैं जिनको चुन लिया जाएगा, and they will witness during the tribulation period as well.
वो लोग जो इस खुशखबरी को सुनेंगे, there is no chance for them now to go up, to caught up in heaven, but they will enter into the eternity from here, but after too much suffering, even they will lay their own lives for the sake of their faith. और ये जो 1,44,000 बनी इस्राइल में से है, जो उस वक्त भी गवाही का काम करेंगे, एंड सेकंडली जो बाकी लोग हैं उस वक्त मुसीबत के जमाने में इन 1,44,000 की गवाही के सबब से उन बाकियों में से भी कौमों, कबीलों और अहले ज़बान और उम्मत में से लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेंगे, लेकिन उनको अपने ईमान की कीमत अदा करनी पड़ेगी और फिर वो एटर्निटी में दाखिल होंगे। इस 7 साल ट्रिबुलेशन पीरियड के बाद जब कलीसिया आसमान पर होगी, दुल्हा दुल्हन के साथ राहत पा रहा होगा, then the Lord Jesus Christ will come again on the Mount of Olives, according to Zechariah 14, chapter 14, 3 and 4. और फिर खुदावंद यीशु मसीह सफेद तख्ती की अदालत और उसके बाद एटर्निटी का दौर शुरू होगा, 1000 साल बादशाही का। तो मसीह की आमद सानी का पहला हिस्सा बादलों पर, कलीसिया उठाई जाएगी 7 साल तक आसमान पर, और जमीन पर 7 साल मुसीबत का जमाना। मुखालिफे मसीह इसी दौरान जाहिर होगा और उसके बाद मसीह खुदावंद आकर अपनी कलीसिया को साथ लेकर जब आएंगे, दुल्हन को साथ लेकर आएंगे, तो अपने मुंह की फूंक और अपनी आमद की तजल्ली से इस अबलीस का मुकम्मल तौर पर खात्मा करेंगे, उस पुराने सांप और उस हैवान का, और फिर अबदियत का दौर शुरू होगा। ये वो बेसिक बातें थी मसीह खुदावंद की आमदे सानी के ताल्लुक से, जिनका मैं आपकी खिदमत में जिक्र करना जरूरी समझता था। बस हरफे आखिर के तौर पर मैं यही कहूंगा, वक्त है कि हम मसीहा की आमद के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि मुसीबत के जमाने से गुजरना ये आसान नहीं होगा। मुसीबत के जमाने से पहले पहले अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द कर दें, ताकि उस दौर से हमें ना गुजरना पड़े। इसलिए मैं कहता हूं, टुडे इज द डे ऑफ सल्वेशन, नॉट टुमारो। रिसीव हिम as your personal Lord and Savior if you have not done before, and enter into eternal kingdom and have forgiveness of your sins in Jesus name. और वही वो वाहिद राह है, the only way that leads to the Father. उसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता है नहीं है। बात को मुख्तसर करते हुए यहां पर मैं रुकता हूं आज के लिए, और खुदावंद की मर्जी हुई तो जैसे मैंने पहले कहा, फिर कभी हम कुछ नए टॉपिक्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, ताकि हम मिलकर और ज्यादा सीखें, बरकत पाएं। क्योंकि जब मैं आपसे शेयर करता हूं तो मैं खुद उस वक्त बहुत बरकत पा रहा होता हूं। तो आपकी वजह से आज के दिन पूरा दिन मुझे सीखने का इत्तेफाक होता है, और वही बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। खुदावंद
आज इस कलाम मुकद्दस की इन अनमोल बातों के वसीला से मुझे और आपको भारी बरकत अनायत फरमाए। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। जी, काबिल एहतराम जनाब पास्टर नवीद मलिक साहब, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से भी बहुत ज्यादा हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको बरकत मिली है। और ये बहुत एक अहम मौजू है जिसको आज आपने टीच किया है, और बहुत सारे अहम सवालों का जवाब वैसे आपके पैगाम में ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन चूंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो सवाल करते रहते हैं, तो हमें थोड़ा सा जो है उनको जवाब देना होता है। So I'm really thankful to you that you are teaching on this very much the very much need of the time topic which everybody has to learn. And our viewers, they are asking a couple of more questions, and the one very known question which usually people ask, like as you told that 144,000 are going to be chosen people at end time. So what is going to happen with others? That is one. And the second question is, these all 144,000 belongs to Jewish tribes. So what is going to happen with the Gentile? So if you can just answer that. अगर मैं उर्दू में भी इसको रिपीट कर दूं कि जो हमारे 144 चुने हुए लोग कलीसिया में से लिए जाएंगे, अगर वो 144 चुन लिए गए तो बाकियों का क्या होगा? और उसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि अगर वो 144 सिर्फ और सिर्फ यहूदी हैं या उनका ताल्लुक यहूदी कबीलों से है, तो जो जेंटाइल हैं उनका क्या बनेगा? इस वाले से थोड़ा सा आप जवाब दीजिएगा। थैंक यू। Thank you, Brother Peter, for asking this vital question. कलीसिया ईमानदारों की जमात है, और कलीसिया में कोई एरा वगैरह नत्थु खैरा नहीं है। हर वो शख्स जिसने मसीह यस्सु को अपना शख्सी निजात दहंदा नहीं कबूल किया, भले वो नवीद मलक मसीह हो नाम। So name is not guarantee or surety that you will go to heaven. तो पहली बात तो ये हमारे समझने के लिए जरूरी है कि every born again believer will be caught up जब खुदाबंद यीशु मसीह आएंगे। तो अब उसके बाद के उस दौर की बात है जिससे मुताल्लिक अब सवाल पूछा जा रहा है। तो कलीसाई ईमानदारों को तो मुसीबत के जमाने के ताल्लुक से नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन आम लोगों को उस वक्त के लिए इंतजार नहीं करना। आम लोगों को उससे पहले मसीह खुदावंद को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल करना है। इसीलिए हम तमाम मीडिया फैसिलिटीज इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं और निजात पाएं। 1,44,000 बनी इसराइल के 12 कबाइल हैं, और 12,000 हर कबीले में से चुन लिया जाता है, क्योंकि बनी इसराइल वो लोग हैं जिनसे खुदाबंद यीशु मसीह आए। खुदा का घराना, खुदा उनको प्यार करता है, चुनी हुई कौम, और वो नहीं चाहता कि उनमें से कोई एक भी हलाक हो। उन 1,44,000 जो चुन लिए गए, जिनके मन रोशन हो गए, 12,000 फ्रॉम ईच ट्राइब, अब वो लोग इस मुसीबत के जमाने में उन तमाम लोगों में जो गैर कौम के हैं या बराए नाम मसीही थे, बाय द वे बराए नाम चीज कोई भी नहीं होती, या वो तमाम लोग जो किसी भी दीन, किसी भी फिरका से ताल्लुक रखते थे, मैं यूं कहूंगा कि जो भी मसीह खुदाबंद पर ईमान नहीं लाते थे कि वो मेरा निजात दहंदा और खुदाबंद है। ये 1,44,000 उनमें गवाही देंगे, और फिर वो कौल पूरा होगा जो मुकाशफा 7 में भी है और 5 में भी,
کہ خدا کے تخت کے پاس ہر قوم اور قبیلہ اور امت میں سے لوگ ہوں گے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا ہوگا۔ یہ چانس مصیبت کے زمانے میں بھی خدا کے رحم، خدا کے فضل اور خدا کے پیار کو ظاہر کرتا ہے اور کسی بشر کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی نوبت توبہ تک پہنچے۔ لہذا غیر قوموں میں سے لوگ جو مسیح پر ایمان لائیں گے، ان 1,44,000 کی گواہی کے وسیلہ سے یہ ڈائریکٹ اٹرنیٹی میں 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہوں گے، صحیح، لیکن جیسے میں نے کہا اب آسمان پر تو جانے سے رہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آمد ثانی کے پہلے حصے میں، لیکن اب ڈائریکٹ وہ 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ امید ہے کہ اس سوال کا کسی حد تک جواب موصول ہو گیا ہوگا۔ تھینک یو جی، thank you very much, Pastor Saab. I got another question for you, and that is related to the pre-tribulation or mid-tribulation or post-tribulation. So normally these three concepts we are hearing, we just are very known in the church, like there's going to be maybe pre-tribulation, post, or mid-tribulation. So we wanted to know your opinion on this, or if you can just teach us from the Bible, like what do you think the church rapture is going to happen? Is it pre or mid or post? So اردو میں اس کو ریپیٹ کر دوں، جو چرچ یا کلیسیا ہے وہ آسمان پر اٹھائی جائے گی، جیسے پاسٹر صاحب نے اس کو سکھایا بھی، اور اٹھائے جانے کے بارے میں چرچز کے 3 مختلف خیالات ہیں، یا علماء کے 3 مختلف خیالات ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مصیبت سے پہلے کلیسیا اٹھا لی جائے گی، اور مصیبتوں کے درمیان کلیسیا اٹھا لی جائے گی، یا مصیبتوں کے بعد کلیسیا جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی۔ تو یہ ریپچر کے والے سے 3 مختلف کانسیپٹ پائے جاتے ہیں، تو ہم اب پاسٹر صاحب سے سیکھیں گے کہ ان کا کیا کلام مقدس کے والے سے پوائنٹ آف ویو ہے۔ تھینک یو جی۔ تھینک یو برادر پیٹر۔ جہاں تک میں نے سیکھا اور جو کچھ میں آج تک دوسروں سے شیئر کرتا رہا ہوں اور اب بھی کروں گا، وہ ایک ایسی بات ہے جس پر علماء کی اکثریت متفق ہے۔ میری کسی بات کو آپ حرف آخر کے طور پر بھلے نہ سمجھیں، کیونکہ آپ خود جتنے بھی ناظرین اور سامعین ہیں، آپ خود بھی جانتے ہیں کہ جیسے بھائی پیٹر نے کہا، علماء بائبل کے مختلف نظریات ہیں۔ تو جہاں علماء مختلف نظریات رکھتے ہیں، وہاں پر میرا بھی کوئی رائٹ ہے کہ میرا بھی کوئی نظریہ ہو، اگرچہ میں علماء کی فہرست میں نہیں آتا۔ لوگ مجھے کچھ سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، میں آپ کا ممنون ہوں، لیکن میں روحانی طور پر پرائمری جماعت کا طالب علم ہوں، اور 30-35 سال سے ابھی پرائمری جماعت میں ہی ہوں، تو کالج کب جاؤں گا اور ہائی سکول اور یونیورسٹی دور کی بات ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے کہنے کا کیا مطلب ہے۔ میں سیکھنے کی روح رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں، پریزنٹ حالات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اب بہت جلد بادلوں پر آنے کو ہے۔ پہلے مسیح کی آمد ثانی بادلوں پر ہوگی، آمد ثانی کا پہلا حصہ، اور اس کے بعد مصیبت کا زمانہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے ریپچر ول ہیپن پری ٹربولیشن، یعنی مصیبت کے زمانے سے پہلے کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ کلیسیا مصیبت کے زمانے سے نہیں گزرے گی۔ اگر آج کووڈ-19 کشت و خون، لڑائیاں، جھگڑے، افراتفری ہے، تو یہ سائن ہے مسیح خداوند کی آمد ثانی کے۔ یا کسی وقت جب میں مسیح میں نہیں تھا تو سینما جایا کرتے تھے،
और सिनेमा के बाहर पोस्टर लगे होते थे। और जब मैं पहली दफा 1-2 दफा गया, वैसे टोटल मेरे ख्याल में 5-6 बार मैंने फिल्म देखी होगी, लेकिन कहने का मतलब यह है, मेरे भांजे थे वो बड़े बड़े थे और कहते थे ये जो पोस्टर हैं ये ट्रेलर्स हैं। मैंने कहा ट्रेलर्स के तो इतने पहिए होते हैं। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब यह है कि जो कुछ अंदर असल पिक्चर चलेगी, मूवी चलेगी, उससे पहले कुछ छोटे छोटे क्लिप्स ये हैं कि ये सब कुछ इस फिल्म में होगा। तो मसीह खुदावंद की आमद सानी से पेशतर और उस मुसीबत के जमाने में जो कुछ होगा, आज जो कुछ हम तजर्बा कर रहे हैं, तोबा तोबा कोविड-19 ने करवा दी लोगों को, लेकिन कहने का मतलब यह है ये सब सिर्फ ट्रेलर हैं उस मुसीबत के जमाने की मुसीबतों के मुकाबले में। तो कलीसिया उठाई जाएगी, उसके बाद मुसीबत का जमाना होगा और मुसीबत के जमाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर फिर आएंगे, जैसे ज़करिया 14:4 में है, और उसके बाद 1000 साल बादशाही, अदालत और फिर अब्दियत होगी। ये मैं इसको इस तौर पर समझता हूं, चूंकि आपने मुझसे पूछा, मैं बाइबल मुकद्दस को बुनियाद बनाते हुए हवाले पहले दे चुका हूं। मेरी अपनी जाती तौर पर कायलियत यही है। Amen. Thank you very much, Pastor. One and last question I would like to ask you, and that is related to the believers. Where are all believers will go after they die? Do they goes to holding place, some holding place, or until the final judgment, or direct to heaven? So, उर्दू में मैं इसको कहूँ तो जो ईमानदार हैं वो मरने के बाद कहाँ जाते हैं? क्या वो किसी एक खास जगह पर रुके रहते हैं जब तक कि फैसला या इंसाफ उनका जो है वो ना हो जाए कि उन्होंने आया जन्नत में जाना है या दोज़ख में जाना है, या वो डायरेक्ट जो है हेवन की तरफ वो चले जाते हैं? तो इस वाले से आप थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। थैंक यू। एक बात मैं कहना चाहूंगा और वो ये है कि मेरे ख्याल में ये जो होल्डिंग प्लेस की आप बात कर रहे हैं या कोई ऐसा मकाम जहां पर उनको ठहरना पड़ेगा, आपके कहने का मतलब शायद आलमे अरवा है। जी, यही मतलब हो सकता है, इसके अलावा कोई और मतलब नहीं। दूसरी बात ये कि मैं जन्नत में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं जन्नत का लफ्ज यूज भी नहीं करता, क्योंकि जो कुछ जन्नत में है वो सब कुछ आज इस दुनिया में मिल रहा है, इसलिए मैं उसका नाम तो यूज भी नहीं करूंगा और ना ही मैं जन्नत में जाऊंगा। ईमानदार खुदा की हजूरी में जाएंगे जहां खुदावंद की हम्द और सताइश होगी, दैट्स ऑल। कोई जिस्म की ख्वाहिश वहां पर नहीं होगी, इसलिए मैं खुदा की हुजूरी या आसमान या खुदा के पास जाने की टर्म इस्तेमाल करता हूं, जन्नत की टर्म इस्तेमाल नहीं करता। अब जब मैं इस मौजू की तरफ आता हूं तो मसीह खुदावंद के जी उठने से पहले अहद अतीक के लोगों की जब मैं बात करता हूं तो वो तो एक खास मकाम पर थे, दे वर वेटिंग। और फिर कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की जो उस वक्त तक अहद अतीक के मर गए थे, और जो मसीह खुदावंद पर ईमान लाए वो उन कैदी रूहों को अपने साथ लेकर आसमान पर गया। ये कलाम का फैसला है। अब मसीह के जी उठने के बाद अब ईमानदारों की रूहों को किसी खास मकाम पर किसी खास वक्त के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब जो ईमानदार लोगों की रूहें हैं वो खुदावंद के पास जाती है। जब कोई भी ईमानदार मसीह में सो जाता है तो उसकी रूह खुदावंद के पास जाती है, उसको मजीद किसी तरह कोई इंतजार नहीं करना पड़ता जैसे पहले, क्योंकि उन्होंने मसीह की खुशखबरी नहीं सुनी थी, इंतजार करते थे। और मसीह ने जब जाकर मनादी की, ईमान लाए, तो मसीह उन कैदी रूहों को अपने साथ ले गए। लेकिन आज के दौर में जब कोई शख्स मसीह यीशु पर ईमान ले आता है, खुशखबरी कबूल कर लेता है, अगर आज वो मसीह में सो जाता है, बदन तो कीड़े खा जाएंगे लेकिन रूह खुदावंद के पास। मुख्तसर जवाब था। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू।